Hello students, good morning. This is a very short video on grapheme. So I'm explaining you what is grapheme. Grapheme writing system cannot be expected without grapheme. So what is grapheme? That's a writing system is made out of a set of graphemes. So whole writing system is made with the set of graphemes and certain characteristic features of their use, and then that there are some characteristic features are there. Their use is called grapheme. As we have phonemes in phonology, phonemes is the smallest unit of sound. So phonology cannot be discussed without phonemes. Means that's the smallest unit of sound, right? For example, if I'm speaking something, so my version will be my sentences will cut into clause, then phrase, then words, then syllable, and at last that's the smallest unit of sound is phoneme, right? So that is called phoneme. That is useful for phonology. And morphemes in morphology. When we discuss morpheme, so that's a morphology. So then last unit or significant unit for morphology, smallest unit of morphology is morpheme. Morpheme means words. Words, it can be free word or it can be bound words, right? Bound is and prefixes, infixes, right? This is these are also words, and then free words, for example fix, right? That's a free word. So these are the morphemes. So when we study morphology, then we need to understand morpheme, right? Now we have graphemes in graphology. So phonemes for phonology, morphemes for morphology, and graphemes for graphology. So the grapheme is a written representation. Please take down, grapheme is the written representation of sound of a language, right? In a language, that's a written representation of sound. A letter or a set of letters. This is called letter or sets of letters which represent a phoneme. That letters which represent a phoneme. For example, this is sound P, I'm speaking P, and then grapheme is this shape, this letter, right? So that's a when letter, phoneme is sound, and grapheme is letter, right? So it is functional unit of visual shape. Visually, you can visualize, but then functional unit is grapheme. Its positional variant is called allograph. And what's the position? Right? That is called allograph. So each grapheme may consist of one or more allographs, right? So that is more like deep knowledge. Like each grapheme may consist of one or more allographs. Allographs is positional variants when tongue and mm, uh, teeth ridge and all. So that is the position variant is called allograph. For example, like allomorph is this and allograph this. That's a p, right? Pin, and then spin. So that's a allograph is this way. Different variants of graphemes are called allograph. So spelling or orthography, right, is the writing of graphemes in proper order to form morpheme. So when we have to make morpheme,
then we have to know the graphemes. So how to put graphemes in a proper order to make morpheme, that is called grapheme. Means whenever we make any spelling, we learn any spelling or orthography. So that's the spelling or orthography is the writing of graphemes. Means we are writing graphemes in proper order to make morpheme. So this is called grapheme, right? So someone asked, that's why I have explained here. The same I am explaining in Hindi as well. Grapheme क्या है? राइटिंग सिस्टम बिना ग्राफीम के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो राइटिंग सिस्टम पूरा किससे बनता है? वो बनता है सेट ऑफ ग्राफीम्स, है ना, एंड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ देयर यूज़। कि ग्राफीम्स के सेट्स, ये जितना भी लिखा है सारे वर्ड्स ग्राफीम है, तो उसके सेट्स और उसके फीचर्स और उसका एक अलग तरह के फीचर्स जो है कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसको कहते हैं ग्राफीम, है ना। एज वी हैव फनीम इन फोनोलॉजी, जैसे हम फोनोलॉजी करते हैं की स्टडी करते हैं तो फनीम्स की ज़रूरत है, क्योंकि दैट्स द स्मॉलेस्ट साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, है ना, वहाँ पे आके हम ठहर जाते हैं। तो फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी सबसे छोटी यूनिट है साउंड की, क्योंकि उससे बड़ा सिलेबल होता है, सिलेबल से बड़ा वर्ड होगा, वर्ड से बड़ा जो होगा वो दैट विल बी द फ्रेज, दैन क्लॉज इज बिगर देन फ्रेज, एंड देन आफ्टर क्लॉज सेंटेंस, एंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस वी मेक पैराग्राफ देन आर्टिकल। तो ये ऐसा सिस्टम चलता है। तो फोनोलॉजी की सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज फोनीम। सिमिलरली मॉर्फिम, तो मॉर्फिम अगर मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉर्फोलॉजी इज मॉर्फिम, मतलब वर्ड्स, है ना। तो वी हैव सिमिलरली ग्राफीम्स जो है वो ग्राफोलॉजी के लिए होता है, फोनोलॉजी के लिए फनीम, मॉर्फोलॉजी के लिए मॉर्फिम, ग्राफोलॉजी के लिए ग्राफीम, जो ग्राफ बनाता है, जो लाइंस बनाता है ना। तो ग्राफीम इज, तो फाइनली ग्राफीम क्या है? तो ग्राफीम इज द रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन है, ये याद रखो, लिखा हुआ, उसको ग्राफीम कहते हैं। अ लेटर और सेट ऑफ लेटर्स विच रिप्रेजेंट अ फनीम, या फिर हम कह सकते हैं लेटर ABCD, या सेट ऑफ लेटर्स जो कि क्या करता है? फनीम को रिप्रेजेंट करता है ना। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ विजुअल स्पेस। ये क्या है? फंक्शनल यूनिट है, जो विजुअल हम विजुलाइज करते हैं उसको, विजुअल शेप को फंक्शनल, उसकी मतलब विजुअल शेप जो हम विजुलाइज करते हैं कि भाई पी ऐसा है। देखो जब माँ बच्चे को सिखाती है तो कहती है PQ और BD, ये बड़ा चारों में डिफरेंस कैसे माँ समझाएगी? तो वो जब वो बोलती है पी, तो वो बच्चा इंटरनलाइज करता है, वो फोनोलॉजी है कि वो माइंड में कि अच्छा इस शेप को पी कहते हैं। तो ये ग्राफीम माँ ने बनाया, शेप बनाया और माइंड में बच्चे को समझाया, तो ये चारों डायरेक्शन से डिफरेंस करना सीख जाता है बच्चा। तो वो जो विजुअल शेप है जब वो माइंड में ले रहा है, उसकी फंक्शनल यूनिट है वो ये है कि वो पहले विजुलाइज कर रहा है, और फंक्शनल मतलब वो लिख रहा है, तो इस तरह से लिख रहा है ना। तो इट्स पोजिशनल वेरिएंट इज कॉल्ड एलोफोन्स। उसकी पोजिशनल वेरिएंट्स कैसे? कि मान लीजिए उसने कहा कि पी, है ना, और पी, तो उसका जो ये दोनों लिख रहा है, क्यों? क्योंकि एक में अगर मान लो इसमें यहाँ पे उसने कहा पिन, तो यहाँ पे पफ ऑफ एयर बनेगा, जो मुंह में पफ ऑफ एयर बनेगा उसके कारण पिन, है ना, ऐसा साउंड आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने कहा स्पिन, तो यहाँ पे S और I के कारण ये जो है अनएस्पिरेटेड P बन गया। इसको एलोग्राफ कहते हैं, क्योंकि हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, एलोग्राफ। तो ईच ग्राफीम में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एलोग्राफ। तो हर ग्राफीम में हो सकता है एक से ज़्यादा एलोग्राफ, मतलब एक ही साउंड को थोड़े से अलग तरीके से हमें
रिप्रेजेंट करना होता है उसको एलोग्राफ कहते हैं. सिंपल टी एंड थिन, तो जिस टिन तो एच का साउंड थोड़ा सा आ रहा है तो इसको एलोग्राफ कहते हैं, है ना. तो फाइनली स्पेलिंग और ऑर्थोग्राफी इज द राइटिंग ऑफ ग्राफीम्स. तो ग्राफ हम अगर स्पेलिंग लिख रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफीम को राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म मॉर्फीम. मतलब एक वर्ड बनाने के लिए हम ग्राफीम्स की हेल्प लेते हैं और ग्राफीम्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं और स्पेलिंग बनाते हैं. मैंने लिखा प्रॉपर तो मैं कितने ग्राफीम्स, ये प्रॉपर है ना. तो मैंने बोलूँगी मैं तो ये फनीम हो जाएगा, लिखूँगी तो 1 2 3 4 5 6 ये ग्राफीम्स यूज़ किए जिससे एक मॉर्फीम बना. तो मैं इसकी स्पेलिंग जो लिख रही हूँ ये मॉर्फीम है पूरा, ये एक मॉर्फीम है, 1 मॉर्फीम है. लेकिन साउंड अगर बोलो तो 6 फनीम्स है और 6 ग्राफीम्स है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में ये ग्राफीम है. तो ये दिस इज समथिंग अबाउट ग्राफीम, राइट. थैंक यू सो मच.